So we can create data table by using these 4 different activities. So first one is by using read range, that already we have covered. So we are just specifying the path of our Excel file, and then we can just create output of that read range activity that becomes as a data table. That is first activity we have seen. Second one is a build data table. So by using build data table, also we are using just a build data table activity and creating data table as an output. Third activity by using we can create data table is a data scraping. So let me demonstrate the same. So this is the Acme website which is available for practice. This is freely available, that is designed by UiPath. And by using this website's credentials, you can just create your credentials and you can just go through this website. You can find different tests or different challenges you can test, you can practice here. So this is the website acme-test.uipath.com. So after clicking on UiPath, let's see, I want to extract or scrap this data. To scrap the data, you can see there are number of rows, number of columns in this website you can find. If I want to extract the same, I should use data scraping activity. So let me delete this. Let me comment this build data table activity. Now I'm just using data scraping, which is available at the ribbon panel of your UiPath Studio. Click on this UiPath Studio's data scraping activity. Click. After clicking there, you can find select a value. So you just click on next and just click here. You need to install or enable UiPath browser extension Chrome before continuing. I think that the extension is missing in me. I'm not sure when I have changed. Okay, so that will not work here. Let me open this one in different browser. This is new setting that came up with by Chrome. I'm not sure what they have changed. Let's check this one. Okay, let me check once again. Yes, you can just click here. You selected a table cell. Would you like to extract the data from the whole table? If you want to extract whole table data, then you just click. In data scraping, there are different options. If you want to just scrap the data for, let's see, if you want to find the data for 10 rows, you can just specify 10. If you want to 100, you can specify 100. But if you want to scrap whole data, you can just put 0 and just finish here. Then is data spanning in multiple pages? Means if you have number of pages to scrap, then you can click on yes. If you want to, if you don't want to scrap on multiple pages, you can just click no. If I click no, your data of only one page will be extracted, and that is just stored automatically in a data table. So you can see data is stored by default in extract data table variable. Remember, this is very important. Whenever you are using data scraping activity,
that data scraping activity automatically creates one variable, that is a extract data table. Almost all times you can find only this variable, output variable, extract data table, and in that variable all rows are extracted. If we want to check what rows we have extracted, you can give that extract data table input to our output data table, extract. So in first session we have discussed about the scope. Since the scope of extract data table, we need to give for sequence, then only we can able to find the variable here. Now I'm just giving path as a variable name as extract data table, and output already we have created. Take one message box to see what are the values or results we have. Click. Okay, now we can see what values we have extracted by using data scraping in message box. Yeah, these are the values we have extracted. If you want to check in a website, you can check or cross check. Yeah, you can see the last value was 2nd August 2017. Open W1, WI1 account position. So all these values are extracted on first page. Okay, any doubt in this data scraping activity? Sir, why you would have changed that to sequence? Which one? In variables tab. Actually, I have just reuse the same sequence. If we want to do in the same, if you want to just grab the data, let me take in another workflow. Let me put a comment on this. If you want to check, so I'll take another workflow. Okay, here I want to just data scraping. Okay, what is the steps to scrap the data? Just click on this window where you want to scrap the data. I mean, I have already clicked here. Then go in data scraping. After clicking data scraping, automatically your window will be moved in your respective browser. So here you have to click on next, select first cell. If you are selecting first cell, automatically you can find the pop-up. You selected a table cell. Would you like to extract the data from the whole table? Just click on that, yes. After clicking on yes, all the values will be extracted, and you have to specify how many values you want to extract. So you can put 0 means all value. And if you want to put on multiple pages, if you want to extract, you can see there are 9 pages available. So if you want to extract the data from 9 pages, then you just put multiple pages for yes. Since there will be lots of data, I'm just clicking no. I want to extract only first page data. So automatically your browser is closed and your data is extracted in your UiPath Studio. The thing is, you should open, you should keep your browser open. Then only you are able to scrap the data. If this browser is not open, then your data will not be scrapped. The condition is your browser should be open. Okay. Now, okay. Now in extra data table, we have already extra data table by default it is created. And to check the values, we can take output data table. In output data table, just pass the value of extra data table that is by default created. Create one variable of output and pass that in a message box. You can see the extracted values.
अंडरस्टूड? सर यस, बट सर एक डाउट था, जब आप ये प्रॉपर्टीज में वर्क करते हो सर, तो आप कहाँ क्लिक करते हो, वो एंटर दबाते हो या नहीं दबाते हो? ये थोड़ा फास्ट होता है तो हमें समझ में नहीं आता। आप मतलब आप बताते जाइए कि प्लीज, मैं अभी एंटर दबा रहा हूँ, ये मैं यहाँ क्लिक कर रहा ओके हूँ। ओके, अंडरस्टूड हाँ अंडरस्टूड, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। हाँ, yeah, actually already I told you, whenever I'm not getting you or I'm not matching with you, please stop me there, no problem. राइट। मुझे स्टॉप करो कि नहीं ये थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। लेट मी डू वंस अगेन। Okay, I'll just delete this one, or I'll just create new sequence because I have to send this you for reference. डाटा स्क्रैपिंग का एक सीक्वेंस है। ओके, मैं न्यू सीक्वेंस बना रहा हूं इसमें। अभी ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। अभी मुझे इस पेज का, आई हैव टू स्क्रैप दिस डाटा, दिस पेज का डाटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहले मुझे इस पेज पे जाना होगा। सो लेट मी लॉग आउट दी माय वेबसाइट। सो आई शुड लॉग इन टू दिस अकाउंट। मेरा यूजर नेम और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी तैयार किया है। सो मैं लॉग इन कर रहा हूं। पहली स्टेप ये है, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा और जो डाटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वहां पे जाना होगा। तो मैं अभी लॉग इन कर रहा हूं। यू कैन एक्सट्रैक्ट एनी डाटा टेबल। पासवर्ड गलत है क्या? जैसे ओके, मैंने लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे मेरा स्क्रीन आया। इसके बाद मुझे डाटा क्या स्क्रैप करना है, क्या मुझे डाटा चाहिए, तो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। वर्क आइटम में डाटा जो है मुझे स्क्रैप करना है, तो मैंने उधर क्लिक किया। अभी ये हमारा पेज रेडी है, इसमें मुझे डाटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। ये मेरा एक्चुअली टास्क है। तो ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने ये ओपन किया, बाकी कुछ नहीं किया। ओके, देन मैं मेरा UiPath स्टूडियो में गया। यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक बार। लेट्स सी, आई हैव क्लिक्ड हियर। देन सेकंड एक्टिविटी में सेकंड थिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आपको विंडो मिलेगा, सिलेक्ट अ वैल्यू। ये ऑटोमेटिकली विंडो आता है, पॉपअप आता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। वहां पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप आता है और आपको बोलते हैं कि जस्ट क्लिक ऑन द फील्ड। यहाँ पे नेक्स्ट करके क्लिक करना है आपको। तो जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक कौन से तो सेल पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा विंडो थोड़ा सा अलग हो गया। मैं फिर से कर रहा हूं, शायद दो विंडो एक बार हो गए। तो यहाँ पे ये मुझे डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे वन टाइम क्लिक किया। उसके बाद डाटा स्क्रैपिंग में क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपका कंट्रोल जो पेज पे आपका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है उधर जाता है। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिकली विंडो पॉपअप होता है, उसको क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको किसी भी एक सेल पे क्लिक करना है। ये विंडो आपको दिखता जाएगा, जस्ट मूव करना है विंडो, सॉरी माउस का ये हैंग ओवर करना है डायरेक्टली यहाँ पे, और एक बार सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दूसरा एक पॉपअप आता है, एक्सट्रैक्ट टेबल। यू सिलेक्टेड अ टेबल सेल, वुड यू लाइक टू एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम द होल टेबल। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा डाटा टेबल एक्सट्रैक्ट करना है। एक सेल पर आपने क्लिक किया तो वहां पे आपको यस करना है। यस करने के बाद ऑटोमेटिकली, मतलब ये सब स्टेप्स है ना, वन बाय वन आप अगर करेक्ट करते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि कितने रोज आपको
कितना डाटा आपको चाहिए। तो आप अगर 0 पे प्रेस किया तो उसका मतलब है आपको पूरा डाटा स्क्रैप करना है। अगर आपको सिर्फ 5 करना है तो आप 5 पुट कर सकते हैं। ये होने के बाद जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश करने के बाद इसका मतलब ये कि आपका इस पेज का डाटा पूरा स्क्रैप हो गया है। आपको अदर पेज का भी चाहिए क्या? अगर आपको अदर पेज का चाहिए तो आप यस बोल सकते, अगर नहीं चाहिए तो आप नो बोल सकते। अगर यस बोला तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे और आगे के पेज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते। अगर नो बोला तो आपका सिर्फ इस पेज का डाटा एक्सट्रैक्ट होगा। जैसे ही मैंने नो किया डायरेक्टली मेरा कंट्रोल है ना ये पास स्टूडियो में आ गया। ओके, इधर तक समझ में आया? ओके सर। तो अभी बाय डिफॉल्ट आप यहाँ ये जो एक्स्ट्रा डाटा टेबल दिख रहा है आपका, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डाटा टेबल ये दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। जब आपको आपका डाटा स्क्रैपिंग कंप्लीट होता है तो या यूआईपाथ स्टूडियो में आएगा। यूआईपाथ स्टूडियो में आने के बाद आपको सिर्फ एक्स्ट्रैक्ट डाटा टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आउटपुट डाटा टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। वो यूआईपाथ ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है इसका आउटपुट डाटा टेबल। प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं, इधर क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रैक्ट डाटा टेबल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है। वो हमने क्रिएट नहीं किया, ऑटोमेटिकली यूआईपाथ ने क्रिएट किया। ओके ओके। अभी ये जो डाटा टेबल क्रिएट हुआ है उसमें हमारा जो स्क्रैप हुआ डाटा है ना पूरा डाटा उसमें आ गया। ठीक है, अभी उस डाटा को अगर मुझे देखना है कि क्या है एक्चुअली उसमें, तो आपको पता है अगर हमें कुछ आउटपुट देखना है या टेस्ट करना है क्या है हमारे उस वेरिएबल में, तो स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए हम मैसेज बॉक्स यूज करते हैं। मतलब अगर स्ट्रिंग डाटा है तो हम मैसेज बॉक्स डाल के वहां पे देख सकते हैं, लेकिन ये डाटा हमारा टेबल में है तो टेबल का डाटा हम मैसेज बॉक्स में नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आउटपुट डाटा टेबल यूज करते हैं। उसका मतलब ये है कि आपका जो डाटा टेबल में है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये जो आउटपुट डाटा टेबल एक्टिविटी है ना, वो आपका जो टेबल डाटा है वो टेबल डाटा टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। आपको देखना है, आपका टास्क क्या है, मुझे इस डाटा टेबल में क्या है मुझे पता नहीं, मुझे वो देखना है। अगर मुझे देखना है तो मेरे पास एक एक्टिविटी कौन सी, मैसेज बॉक्स। लेकिन मैसेज बॉक्स एक्टिविटी क्या करती है, सिर्फ टेक्स्ट डाटा दिखाती है, वो टेबल का डाटा नहीं दिखाती। तो मैसेज बॉक्स एक्टिविटी क्या बोलेगी, मुझे तुम टेक्स्ट डाटा ही दे दो, मुझे टेबल का डाटा नहीं चाहिए। तो हमें कौन सी तो एक्टिविटी यूज करनी चाहिए जो एक्टिविटी ये जो डाटा टेबल जो है उसका टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। वो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आउटपुट डाटा टेबल एक्टिविटी ले ली। तो आउटपुट डाटा टेबल में मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो डाटा टेबल का डाटा है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आउटपुट डाटा टेबल एक्टिविटी ड्रैग कर दी। इसके इनपुट में प्रॉपर्टी पैनल में जाओ, इस इनपुट में क्या देना पड़ेगा, मुझे क्या कन्वर्ट करना है, डाटा टेबल। यस, नाम क्या है उस डाटा टेबल का, एक्स्ट्रा डाटा टेबल ना। ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। उसको हमें देखना है, देखने के लिए मैंने आउटपुट डाटा टेबल एक एक्टिविटी ले ली और उस एक्टिविटी क्या करती है, टेबल का डाटा टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इनपुट में मैंने दे दिया एक्स्ट्रा डाटा टेबल, आउटपुट में क्या करना होगा, मुझे एक टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करना होगा। लेट्स सी, मैं टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, टेक्स्ट डाटा। ओके, और मैसेज बॉक्स क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट डाटा ही रीड करता है। मैसेज बॉक्स मुझे अंदर लेना पड़ेगा बिकॉज स्कोप नहीं है उसका, टेक्स्ट डाटा। तो अभी क्या होगा, मेरा डाटा स्क्रैपिंग का डाटा ऑलरेडी डाटा टेबल में था। कौन से डाटा टेबल में था, एक्स्ट्रा डाटा टेबल में था। वो मुझे टेक्स्ट में करना है, इसलिए मैंने एक एक्टिविटी ले लिया आउटपुट डाटा टेबल। वो क्या करता है, एक्स्ट्रा डाटा टेबल जो टेबल का डाटा है वो टेक्स्ट डाटा में कन्वर्ट करता है, उसका वेरिएबल है टेक्स्ट डाटा। वो टेक्स्ट वेरिएबल मैंने कहां पे पास किया, मैसेज बॉक्स में। तो अभी मुझे मैसेज बॉक्स में जो मेरा टेबल का डाटा है वो देखने को मिलेगा।
रन करूं? ओके सर। ओके, समझ में आया अभी क्या क्या मैंने? यस सर, यस। तो ये सिंपल एक्टिविटी है, जैसे हम रीड रेंज यूज करते हैं वैसे ये एक्सट्रैक्ट करके कन्वर्ट करता है। मतलब 3 डिफरेंट एक्टिविटीज है जो हमारा डाटा टेबल में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट वन इज द बिल्ड डाटा टेबल, रीड रेंज एंड डाटा स्क्रैपिंग। तीनों एक्टिविटी आपको समझ में आई? यस सर। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, ये मेरा जो डाटा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज का डाटा नियर अबाउट 10 या 15 कॉलम्स रोज है। तो मुझे अभी फिल्टर करना है। कभी कभी बिजनेस की रिक्वायरमेंट, व्हेनेवर समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बिजनेस नीड्स only specific type of data. For example, I want to check only the data which is having WI2. So WI2 के कितने लोग यहाँ पे हैं? Type of WI2 1 2 3. So out of all this data I just want to find out type WI2. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर मुझे WI2 ही चाहिए तो सिर्फ what I should do? आपको क्या लगता है? कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन लगानी पड़ेगी या फिल्टर लगाना पड़ेगा, राइट? ओके, राइट, फिल्टर। यस। तो फिल्टर लगाने के लिए हमारे पास एक्सेल में, सॉरी UiPath में एक्टिविटी है, उसका नाम है फिल्टर डाटा टेबल एक्टिविटी। सो वी कैन यूज फिल्टर डाटा टेबल। So I'll take that activity below our first scrapping results. In filter data table, I'm clicking on this filter data table activity. Whenever you want to check the property, you can click on that particular activity. You can find at right side property panel. Okay. Now just click on this configure filter. Here you can put इनपुट डाटा टेबल। कौन से टेबल पे आपको फिल्टर लगाना है? कौन से टेबल पे लगाना है हमें फिल्टर? हमारा स्क्रैपिंग का डाटा कौन से टेबल पे स्टोर है? ये डाटा कौन से टेबल में स्टोर है? टेक्स्ट डाटा। Yes, extract data table, correct. So sorry, text data we have converted that one. We are just converted for text. Just delete that one. We have stored data in which data table? Because we are performing operation on data table. We are not performing operation on text. What is the name of data table? Extract data table. Extract data table. So we can put input data table as a extract data table. If you want to store the result in the same data table, you can store. अगर आपको same data table में store करना है result, तो store कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे data table में करना है, तो वो इसे भी कर सकते हैं। आपको कैसे करना है? आप बताओ। दूसरा ले लेते हैं सर। चलो दूसरा लेते हैं। चलो यहाँ पे डायरेक्टली आप कंट्रोल के करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर DT करके। यहाँ पे भी आप डाटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा डाटा ओरिजिनल डाटा रहेगा एक्स्ट्रा डाटा टेबल में, और फिल्टर डाटा कौन सा डाटा टेबल में रहेगा? अदर DT में। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कीप एंड रिमूव। आपको कीप करना है या रिमूव करना है। अगर आपकी कंडीशन मैच हो गई तो आपको कीप करना है तो कीप करना है, नहीं तो रिमूव कर सकते हैं। हमें अभी कीप करना है। और यहाँ पे आपको कंडीशन पुट करना है। कंडीशन क्या है? कॉलम नेम टाइप इज इक्वल टू WI2। सो यहाँ पे टाइप कॉपी करो, कॉलम का नाम हमारा टाइप है, टाइप इज इक्वल टू WI2। ओके,
WI2 अगर है तो फिल्टर करना है और अदर DT में स्टोर करना है। समझ में आया क्या क्या? मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई, टाइप इज इक्वल टू WI2। कौन से डाटा टेबल में लगाई? एक्सेल डाटा टेबल। उसका आउटपुट क्या होगा? न्यू डाटा टेबल मैंने क्रिएट किया अदर DT करके। अभी इसको मैं क्लिक करो, ओके कर रहा हूं। अभी मुझे अगर इसका आउटपुट देखना है तो मैं क्या करूंगा? आउटपुट डाटा टेबल लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे चेक करना है। आउटपुट डाटा टेबल को अभी आउटपुट क्या, इनपुट क्या देना पड़ेगा? अदर DT देना पड़ेगा, अदर DT। और यहाँ पे टेक्स्ट डाटा देखना है तो टेक्स्ट डाटा आउटपुट मैंने लिया और मैसेज बॉक्स किया। ओके, अभी कितने टेबल्स कितने रोज आ गए हमारे पास? 3 रोज आ गए। सबका टाइप क्या है? WI2। WI2। अगर हमें राइट करना है बोथ डाटा टेबल, मतलब ये भी एक्स्ट्रा डाटा टेबल भी राइट करना है और फिल्टर भी राइट करना है, तो हमें कौन सी एक्टिविटी लेनी पड़ेगी? राइट रेंज ना। डाटा टेबल राइट कैसे करते हैं हम? राइट रेंज। तो let me tell the difference between Excel application scope and वर्कबुक एक्टिविटीज। अभी तक हमने एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के एक्टिविटी में ही काम किया है। अभी वर्कबुक में और एक्सेल में व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप एंड वर्कबुक टाइप ऑफ एक्टिविटीज? तो द सिंपल डिफरेंस इज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, complex activities are available with Excel application scope type. फर्स्ट डिफरेंस, अगर एक्सेल टाइप किया तो आपको एक्सेल के बहुत सारे एक्टिविटीज देखेंगे, लेकिन वर्कबुक किया तो लिमिटेड एक्टिविटीज अवेलेबल है वर्कबुक। पहला वो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, अगर एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप आप यूज करते हैं तो अगर आपकी एक्सेल फाइल ओपन होगी तो भी आपका आउटपुट या वो रन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप क्या करता है? पहले तुम्हारी फाइल ओपन करता है, उसके बाद ऑपरेशन करता है और उसके बाद क्लोज करता है। लेकिन वर्कबुक वैसे नहीं करता। वर्कबुक एप्लीकेशन एक्सेल फाइल ओपन नहीं करता, डायरेक्टली वो वर्क करता है उस पर। गेटिंग माई पॉइंट, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। मैं थोड़ा सा ओपन नहीं कर रहा, डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ। ये समझ में आया ना आपको? फिल्टर डाटा टेबल। यस। एनी डाउट्स इन फिल्टर डाटा टेबल एंड डाटा स्क्रैपिंग? मैं अभी डिफरेंस के लिए न्यू सीक्वेंस लेता हूं। A difference between Excel application scope and workbook. So let me close this one. If I'm using Excel application scope activities, already you know this activities, drag and drop and give the path. Any Excel file, I'm just putting the path. So this is the employee path. And I'm taking one message box so that you can understand the difference. Okay. Now, when I am using this Excel application scope activity, what is happening? Let's check. मैंने रन किया, रन करने के बाद देखो क्या होता है। क्या होता है? एक्सेल फाइल ओपन हो गई, उसके बाद मैसेज बॉक्स प्रिंट हुआ। जैसे मैं इसको ओके करूंगा, एक्सेल फाइल क्लोज हो गया। अंडरस्टूड द डिफरेंस? व्हाट हैपेंड? यस। एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप क्या करता है? फाइल ओपन करता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और क्लोज करता है। अभी वर्कबुक का एक्टिविटी में बोलता हूं।
Workbook में we have lots of activities, but the difference is workbook activity बैकग्राउंड में वर्क होती है, वो कोई भी फाइल ओपन नहीं करती, फर्स्ट डिफरेंस. देन फॉर वर्कबुक अगर मुझे कुछ फाइल कुछ एक्सेल रीड करना है तो मुझे डायरेक्टली आई हैव डायरेक्टली रीड रेंज एक्टिविटी. मुझे एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप जैसे एक्टिविटी की जरूरत नहीं. यहाँ पे डायरेक्टली आप पाथ दे सकते हैं, वर्कबुक पाथ. लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग दिस पाथ. सो अगर आपको 10 एक्शन करना है तो 10 बार आपको पाथ देना पड़ेगा. लेकिन एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप में एक बार पाथ दिया और नंबर ऑफ ऑपरेशन आप इसी में कर सकते हैं, डू में. नाउ you can see by using Excel application scope, file is opening. Let me close this Excel application scope and just run this workflow. अभी क्या किया मैंने, रीड रेंज में एम्प्लॉय फाइल का पाथ दिया है. मैं अभी रन करता हूं. अभी फाइल ओपन नहीं होगी, डायरेक्टली रीड करेंगे और स्टॉप होगी, कुछ नहीं उसमें दिखेगा आपको. दिखा कुछ? No. Okay. So the difference is if you are using workbook type of activities, then every time you have to give the path. It is working in background, but Excel application scope, you have to put the path only one time and you can drag and drop lots of activities, whatever you want to do. There is no any limitations how many activities you can put in Excel application scope. Every time you should not give the path, but workbook type of activities, you have to give the path for each and every activity. So go in first data scraping point. If I want to write my Excel file, right now I am using workbook type of activities because for single activity you can use a right range of workbook. So I'm just dragging a right range activity after extract data table. And here you can see for a workbook type of activities, every time you have to give the path of your file. So I'm just giving the path. समझ में आ रहा है ना, कुछ फास्ट नहीं हो रहा. नहीं, राइट रेंज ऑलरेडी हमने किया है. मैं सिर्फ राइट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा डाटा टेबल जो किया है उसको राइट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए. तो यहाँ पे मैंने पाथ प्लेस किया. शीट, let's see, I'm just putting the sheet name is a 4 and variable that is extra data table. अगर मुझे फिल्टर का राइट करना है तो अगेन मैं डिफरेंट राइट रेंज एक्टिविटी ले रहा हूं. यहाँ पे डाटा टेबल का नाम क्या होगा राइट करने के लिए? सेम एक्सेल में मैं राइट कर रहा हूँ एम्प्लॉय में. Tell me which data table I should put here. Other DT. Yes, absolutely correct. And I'm passing the sheet name as 5. Let's see what happens. Just a second. Okay, let's check the output. In sheet 4 we have 10 rows and sheet 5 we have 3. Means filter data is available. Actually we miss initially we discussed there should be add headers clicked. If we are not clicking add headers, then headers will not be displayed there. So always while putting the right range, you should check whether right range headers are clicked. I'm just rerunning the bot. Yes, when you are using workbook type of activities, your file should be always closed. If it is open, it shows this error. Let us check output again. You can see
in fourth and in a fifth, we are header cells. Okay. Okay. Any doubt? Understood?